تھل جیپ ریلی کے حوالے سے لیا میں 5ویں تھل جیپ ریلی کا رنگا رنگ 3 روزہ میلہ سج گیا۔ چوبارہ کے ریگزار میں آباد عارضی شہر میں جنگل میں منگل کا سما، گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ، میڈیکل چیک اپ اور کوالیفائنگ راؤنڈ جاری۔ میر نادر مکسی، صاحبزادہ سلطان محمد علی، رونی پٹیل سمیت 80 سے زائد دیگر نامور ریسرز کی شرکت۔ کل ویمن کیٹیگری اور سٹاک کیٹیگری کی ریس ہوگی۔ 22 نومبر کو پری پیڈ کیٹیگری کی ریس اور تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ 5ویں تھل جیپ ریلی کا رنگا رنگ 3 روزہ میلہ سج گیا ہے۔ 5ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ پہلی گاڑی ٹریک سے روانہ ہو گئی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ریسرز 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ عامر بتائیے گا۔ جی بالکل، 5ویں تھل جیپ ریلی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی گاڑی جو ٹریک پر روانہ ہو چکی ہے۔ کیمرامین مجاہد سلطان آپ کو دکھائیں گے کہ 302 یہ گاڑی کا نمبر ہے جو کہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جو حصہ لے رہی ہے۔ 2.5 کلومیٹر کا ٹریک ہے یہ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے، جس کے لیے ٹائم جو ہے متعین نہیں کیا گیا۔ 2 منٹ کے وقفے سے جو وہ گاڑیاں یہاں سے روانہ ہوں گی اور ملک کے نامور ریسر جو ہے باقاعدہ طور پر اس 5ویں تھل جیپ ریلی میں جو حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا SOPs کے پیش نظر یہاں پر سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہاں پر یہ دوسری گاڑی جو ہے اس وقت یہاں سے روانہ ہوگی۔ چھانگا مانگا ٹیلا کے مقام پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ آج پہلے دن جو ہے صرف کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، جس میں 81 گاڑیوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ اب تک ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے روز سٹاک کیٹیگری کی ریس ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ایونٹ کی اس بار خاص بات یہ ہے کہ بائیکرز بھی اس تھل جیپ ریلی میں پہلی بار جو وہ حصہ لیں گے، جبکہ تیسرا اور آخری روز جو ہے وہ پری پیڈ گاڑیوں کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا اور پری پیڈ گاڑیاں جو وہ تیسرے روز یہاں پر اس ٹریک میں حصہ لیں گی۔ کورونا کے خدشات کے پیش نظر اس بار ٹریک کو جو ہے محدود کر دیا گیا اور 105 کلومیٹر جو ہے وہ لمبا اس بار جو وہ ٹریک رکھا گیا اور لیا کی تحصیل چوبارہ کے مقام پر اینڈنگ پوائنٹ جو وہ رکھا گیا۔ 105 کلومیٹر کا ٹریک رکھا گیا ہے، جبکہ پہلی گاڑی ٹریک پر روانہ ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ عامر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جنوبی پنجاب میں موٹر سپورٹس کے میگا ایونٹ 5ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا۔ ریلی کے لیے تھل کے ٹیلوں میں میلہ بھی سجا دیا گیا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 80 سے زائد گاڑیاں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی رضا ملک نے۔ رضا بتائیے گا، میلہ سجا دیا گیا ہے؟ جی بالکل، میلہ سج گیا ہے اور جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ 80 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ کیوڈ ہیں جو اپنا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل کریں گی اور اب تک اس سلسلے میں سے 34 گاڑیاں جو ہیں وہ اپنا جو ٹریک ہے وہ مکمل کر چکی ہیں اور سب سے جو زین محمود ہیں انہوں نے سب سے کم وقت میں یہ ٹریک مکمل کیا اور یہ ٹریک جو ہے انہوں نے 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں مکمل کیا ہے، جبکہ صاحبزادہ سلطان جو ہے وہ اب تک جو ٹائمنگز ہیں اس میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ 1 منٹ اور 36 سیکنڈ میں انہوں نے یہ 2.5 کلومیٹر کا جو ٹریک جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ ہر گاڑی جو ہے وہ ایک گرد و غبار کا طوفان اڑاتی ہوئی جو آتی ہے، گرد و غبار کا، اور جو ہے ایک سلسلہ جو شروع ہے۔ اب تک 2 گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریک سے آؤٹ ہو چکی ہیں، ٹریک پر خراب ہو چکی ہیں۔ گاڑی نمبر 707 اور 508 یہ 2 گاڑیاں جو ہیں وہ اپنا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل نہیں کر سکی اور کوالیفائنگ راؤنڈ کے دوران ہی خراب ہو گئے ہیں، جبکہ باقی گاڑیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اپنا کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ مکمل کر رہی ہیں۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ جو سپر سٹارز ہے موٹر سپورٹس کے وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے۔ اس میں رونی پٹیل شامل نہیں اور اس میں نادر مگسی جو ہے وہ اس 5ویں تھل جیپ ریلی میں حصہ نہیں لے رہے، جبکہ ویمن کیٹیگری میں جو ہے وہ سلما خان اور تشنا پٹیل جو ہے وہ اپنا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل کریں گی اور ان کی گاڑیاں بھی جو ہیں وہ لائن اپ ہیں، اپنی ٹرن آنے پہ وہ یہ جو 2.5 کلومیٹر کا ٹریک ہے یہ مکمل کریں گے۔ شائقین موٹر سپورٹس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ٹیلوں پر موجود ہے اور مختلف مقامات پر اس 2.5 کلومیٹر ٹریک پر ہر موڑ پر جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں موٹر سپورٹس کو دیکھنے کے لیے اور ابھی جو یہ بنیادی طور پہ یہ ٹریک ہے، یہ جو اگر دکھا سکیں تو یہ بڑا ایک ڈفرنٹ قسم کا جو ٹرن اینڈ ٹوسٹ ہے، یہ یہاں پر آخر گاڑیاں جو ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ٹریک پر ایک گاڑی جو ہے وہ نکلی تھی تو اس کو 4.5 منٹ سے زیادہ ہو گئے، جس کے بعد اب اس کا یہاں ٹائم جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور وہ گاڑی ابھی تک ٹریک پر واپس نہیں آئی اور اس کی ٹریک کلیئرنس کی وجہ سے جو ہے ابھی تک یہ گاڑیاں جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں کہ کیونکہ جو ٹریک ہے وہ مکمل ہونے کے بعد جیسے وہ ٹریک کلیئر ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہاں سٹارٹنگ پوائنٹ سے جو ہے وہ گاڑی کو روانہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو کیمرہ مین اگر دکھا سکیں تو یہ جو سپیڈو میٹرز کو جو ہے یہ نوٹ کرنے کے لیے یہ جو میٹر لگا دیں گے، یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے کہ جو گاڑی یہاں سے جیسے گزرتی ہے تو یہ اس کا جو چیک ٹائم ہے وہ فوراً ہی وہاں جو کمپیوٹر سکرین لگائی گئی ہے اس کے اوپر ڈسپلے آ جاتا ہے اور اس حوالے سے بڑا شفاف نظام بنایا گیا ہے۔
کہ مائکرو سیکنڈز کو بھی جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں. بڑے شائقین کو دکھا سکیں تو مجاہد ذرا دکھائیں کہ ٹیلے پر کیا سما ہے اس وقت, اور یہ جو کیمپس لگے ہوئے ہیں اور ایک ہر طرف جو ہے ایک رنگ و نور کا جو سیلاب ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں, اور ریت کے ٹیلوں میں بہت لوگ بیٹھے جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور جو شروع میں تو اسموکی دن تھا جس کی وجہ سے تھوڑا یہ کوالیفائنگ گراؤنڈ تاخیر کا بھی شکار ہوا, لیکن اس وقت جو دھوپ ہے اس کی تماست جو ہے وہ انتہائی بھلی محسوس ہو رہی ہے اس صحرا میں, اور لوگ رضا ملک, آپ نے بتایا کہ ہر موڑ پر رش لگا ہوا ہے موٹر سپورٹس دیکھنے کے لیے اور مائکرو سیکنڈز تک کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے, تو ہم دیکھ پا رہے ہیں روئی کی اسکرین پہ کہ کافی لوگ وہاں موجود ہیں. کرونا کے حوالے سے انتظامات کیا کیے گئے ہیں اور ان پر کس حد تک عمل کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو کرونا کے حوالے سے جو ایس او پیز تھے ان کو فالو کرنے کی صورت میں ہی جو 5ویں تھلجیپ ریلی کی انعقاد کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی, اور اس حوالے سے یہ خصوصی ہدایت کی گئی تھی کہ ان تمام تر ایس او پیز کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا, اور اس حوالے سے بار بار جو سٹیج سے اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے پولیس کی بھی جو ہے وہ مدد لی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دیں, کہ ان کو بتائیں کہ اس حوالے سے کہ وہ کرونا ایس او پیز کی پابندی کریں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. لیکن عملاً جہاں مختلف, ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہجوم ہے وہ مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم ہے, ہر ٹیلے پر جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسیاں ڈال کے, لیکن جو مرکزی ٹیلہ ہے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ قریبی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے ماسک کا استعمال بھی نسبتاً 2 گاڑیاں اب تک ٹریک سے خراب ہو کر آؤٹ ہو گئی ہیں. ہر موڑ پر رش لگا ہوا ہے موٹر سپورٹس کو دیکھنے کے لیے اور مائکرو سیکنڈز کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے. کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں, بہترین انتظامات ہیں. رضا ملک, آپ تفصیلات بتا رہے تھے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر کوہ سلیمان میں ترقی کا سفر جاری ہے. محکمہ زراعت نے کوہ سلیمان میں زیتون اور کھجور کے باغات لگانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے محسن الملک. محسن بتائے گا. جنوبی پنجاب میں ویسے تو بہت خوبصورت مقامات ہیں, لیکن کوہ سلیمان اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے, اور اس خوبصورت جگہوں پر نہ صرف نظارے اچھے ہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے, قدرت کی طرف سے یہاں پر جو زمین ہے وہ بہت زیادہ مالا مال ہے. اس میں ذخائر ہیں, اس میں معدنیات ہیں, اور خاص طور پر اس میں کیپیسٹی ہے جو ایگریکلچر کے حوالے سے یہاں پر کام ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے محکمہ ایگریکلچر بہت زیادہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے. باغات لگائے جا رہے ہیں اس بار, اور باغات بھی سٹرس اور زیتون کے ساتھ ساتھ کھجوروں کے باغ لگیں گے. کوہ سلیمان میں جانے والے اب باغات کے نظارے بھی لیں گے. تو ہمارے ساتھ ماہر صاحب موجود ہیں جو کہ اس سارے پروجیکٹ کو خود دیکھ رہے ہیں. ماہر صاحب, یہ تو بڑی اچھی چیز ہوگی, ایک تو خوبصورت نظارے ہیں, باغات اور ہو جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس کا. کوہ سلیمان میں جو ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بنیادی طور پر 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی جو پاورٹی لائن ہے اس کے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بلو ہیں. ایک تو ہم ان کے لیے انٹروینشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو سبسسٹنس فارمنگ ہے, جو گھر کا گزارا ان کا ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کی معیشت مستحکم ہو جائے. دوسرا جو ہمیں وہ گنجائش وہاں پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ڈیفرنس ہے. جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں 1000 فٹ کی بلندی پہ اوپر جاتے ہیں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہمارا ڈی جی خان جو دوسرے میدانی علاقے ہیں ان سے کم ہے. اس طریقے سے اگر ہم 5000 فٹ کی بلندی پہ اگر جائیں تو جس طرح کہ مبارکی کی پہاڑیاں ہیں, فورٹ منرو سے نیچے جو وہاں پہ جو گھاٹیاں موجود ہیں وہاں پہ, تو ان کا جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے وہ 7-8 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کا ڈفرینس ہے. تو وہ ٹیمپریچر کا ڈفرینس جو ہے نا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم باغات لگا کے ان کا اچھا فروٹ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سبزیات کی پنیری لگا کے وہاں پہ, تو جہاں میدانی علاقے میں جب نہیں لگ سکتی تو وہاں پہ لگا کے تو ادھر ان کی کمرشل سیل ہو سکتی ہے. تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس جو تھوڑی زمین موجود ہے وہاں کو اکنامکلی بہت زیادہ وائبل بنا سکتے ہیں. تو باغات کے حوالے سے زیتون کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل موجود ہے. جو مبارکی اور جو 5000 4000 5000 فٹ سے زیادہ بلندی کی وہاں پہ ہیں جہاں پہ پانی بھی اویلیبل ہے جس جگہ پہ, تو وہاں پہ زیتون کی جو آئل ریکوری ہے وہ بڑی زبردست ہے. تو وہاں پہ ہم پلان کر رہے ہیں 75 ایکڑ پہ اس سال ہم باغ وہ لگوائیں گے, جس میں 3 ایکڑ کا ایک یونٹ ہوگا, 3 سے 5 ایکڑ کا. اور ہم نے یہ رکھا ہے کہ ایک فارمر کے پاس جو ایک باغ لگوائیں وہ ایک ہی یونٹ ہو. اگر ہم نے ڈیٹ پام لگانی ہے تو ڈیٹ پام ہی ہو, اگر آلیو ہم نے لگانا ہے تو صرف آلیو ہی ہو, تاکہ اس کا اکنامکلی 3 ایکڑ کم سے کم یونٹ تاکہ اس کا فائدہ ہو. ہم 75 ایکڑ پہ آلیو لگانے جا رہے ہیں اور 35 ایکڑ پہ سٹرس لگانے جا رہے ہیں. اور ہم کھجور کو جو لو لائنگ ایریاز ہیں سخی سرور اور ساتھ والے جو لو ہیں وہاں پہ ہم ٹرائی کریں گے کہ کھجور کے ہم 3 بلاک 9 ایکڑ پہ لگائیں گے. تو اس طرح 119 ایکڑ اس سال ہیں
और 116 एकड़ अगले साल लगाएंगे, तो 235 एकड़ का हमारा जो है ना वो हमारा हदफ है, हम इंशाल्लाह वहाँ पे लगवाएंगे। मकसद यही है वहाँ पे लोगों की गुर्बत खत्म हो। ये बढ़ेगा भी टारगेट आपका ऐसा ऐसा अगर ये कामयाब होता है फार्मूला? बिल्कुल, देखिए जो डिपार्टमेंट करता है उसका जो हम जिस प्रोजेक्ट के जरिए लेकर आ रहे हैं, फार्मर को जब इनका फायदा होगा ऑटोमेटिकली फार्मर इस पे खुद आ जाएंगे और ये एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जी, जहां पर अल्लाह पाक ने कोई सलमान को जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। कोरोना के दौरान रोके गए महकमा औकाफ के फंड्स को दोबारा जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से महकमा औकाफ को जारी करदा फंड्स जो वापस ले लिए गए थे, अब वो फंड्स दोबारा से जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। दरबार हजरत बीबी पाक माई जो कि सदियों पुराना मज़ार है, खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मज़ार की जो दीवारें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, फर्श जगह जगह से उखड़े हुए हैं, जिस पर ताज़ीनो आराइश का काम जारी था। लेकिन कोरोना की वजह से जो फंड्स जारी किए गए थे वो वापस ले लिए गए थे, 45 लाख रुपए के फंड्स। अब वो फंड्स दोबारा से जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद ताज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मज़ार का बरामदा है और इसकी छत ऊपर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। सतून यहाँ पर जो इसके थे उनको भी लकड़ियों के साथ सहारा दिया गया है। किसी भी वक्त जो है ये गिर सकते हैं, हादसे का सबब बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ख़वातीन ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में उनके साथ बच्चे भी होते हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और सर पर छत जो है वो मौजूद नहीं है क्योंकि फंड्स नहीं थे और तामीराती काम जो है वो रोक दिया गया था। उस साइड पर टाइल्स और ईंटें आप देख सकते हैं कि वो भी वैसे की वैसी ही पड़ी हुई हैं। तकरीबन 6 से 7 माह गुजर चुके हैं, अभी तक फंड्स ना होने की वजह से तामीराती काम जो है वो शुरू नहीं हो सका था। जबकि यहाँ पर जो ज़ायरीन के लिए पहले वजू खाना नहीं था, वजू खाना बनाने के हवाले से भी काम जो है वो जारी था और मज़ार के इर्द गिर्द जो 4 दीवारी है वो भी की जानी थी। लेकिन चूंकि फंड्स नहीं थे इसलिए यहाँ पर ज़ायरीन जो है वो भी कम तादाद में आ रहे हैं। फंड्स जारी कर दी गए हैं। सुहेरा तारिक आप तफसीलात बता रही थी। कोटद्दू में सर्दियां शुरू होते ही सुई गैस गायब हो गई। सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर पर शहरी सरापा एहतजाज है। अपडेट करेंगे इस हवाले से तैमूर अतहर। तैमूर बताएगा। सर्दियों के आगाज में ही कोटद्दू में सुई गैस की बंदिश जारी है। सारा दिन सुई गैस नहीं होती, अगर होती भी है तो सुई गैस का प्रेशर बहुत कम है, जिसकी वजह से खवातीन को काफी मुश्किलात का सामना है। घरों में खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। सुई गैस ना होने पर शहरी सरापा एहतजाज है, प्ले कार्ड हाथ में उठाए हैं। में से यहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या मसला है, किस किस इलाके में सुई गैस नहीं आ रही? जी एक्चुअली वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 8 में और 14C में जो मैटर चल रहा है, काफी अरसे से सुबह नाश्ते के टाइम भी गैस नहीं होती और शाम को भी। सुबह बच्चों को जाने के लिए मसला होता है स्कूल में और इसके अलावा सीवरेज के भी मसाइल हैं। आप क्या कहेंगे, क्या क्या मसला है सुई गैस ना होने की वजह से? ना नाश्ता बना सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं। भूखे बच्चे जाते हैं स्कूल, वापस आते हैं तब भी भूखे होते हैं। गैस जमी हुई नहीं है, इतनी सर्दियां नहीं हो गई कि गैस जम गई हो और गैस बंद हो गई हो। वाल बंद कर देते हैं, अभी तक वाल बंद हैं। पता नहीं हमारी गैस जाती कहाँ की है, दायरे आ रही है, सिनावे आ रही है, लाइन पार आ रही है, बस हमारी सिटी की ही गैस बंद की जा रही है। इस पे बंदिश है, इसमें लोड शेडिंग की गई है। आप बताइएगा क्या मुश्किलात हैं गैस? खवातीन को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब मिंचनाबाद नवाही कस्बा मैक्लोडगंज में नहर फोर्ड वाह का पुल खस्ताहाली का शिकार। नहर फोर्ड वाह का पुल मंडी सादिकगंज से मिलाने का वाहिद रास्ता है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शेख गुलाम मुस्तफा नदीम से। गुलाम मुस्तफा बताइएगा। मैं मिंचनाबाद के नवाही कस्बा मैक्लोडगंज पर मौजूद हूँ। मैक्लोडगंज को मंडी सादिकगंज से मिलाने वाला वाहिद पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। इसकी जो हिफाजती दीवारें हैं वो भी नहर में गिर चुकी हैं और ये खुद भी किसी वक्त भी नहर बोस हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मैक्लोडगंज के शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये पुल कब का बना और यहाँ पर क्या क्या हादसा रोडमा हो चुके हैं, इनको क्या मुश्किलात का सामना है। अच्छा बताइएगा, ये आपका पुल बहुत पुराना बना हुआ है, बड़ी खस्ता हालत में, इसमें क्या क्या हादसा हो चुके हैं? इसमें जी 2 तो बूढ़े गिरे हैं मेरे जैसे, जो हमने इस नदी से निकाले हैं। उसके बाद एक चिंगी हादसे का शिकार हुई, उसमें बच्चे और मुसाफिरों को अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, उनको बाहर ले आए। अब हमारा कहने का मकसद ये है, आप अपनी बात आंखों से देख लो कि इसकी क्या हालत है। हमने SDO साहब से भी गुजारिशें की हैं, ओवरसीयर से भी, SDO से भी, एक्शन से भी हमने काफी कहा है, लेकिन ये जिसकी हालत देख लो, इसमें क्या है। आप भी अंधेरे में
हादसे का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा हमारे साथ ये दुश्मनी ना की जाए कि हमारे रास्तों के कांटे ना बिछे। या खुदा इन पे दिल में मेहरबानी और रहनुमाई पैदा कर हमारे लिए ये बेहतरी करें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना था कि ये पुल का शिकार है। शेख गुलाम मुस्तफा नदीम आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, तहसील अलीपुर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गईं। ट्रैफिक पुलिस में तैनात एहलकार ने नहर किनारे लगी 80 से ज्यादा दरख्त काट दिए। अपडेट करेंगे इस हवाले से राना इमरान सईदी। राना इमरान बताएगा। जी, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान भर में जो है शजरकारी मुहिम, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जो है शजरकारी की जा रही है, दरख्त लगाए जा रहे हैं। एक तरफ अलीपुर में जो है लगे हुए जो दरख्त थे उनको जो है वो काट दिया गया है, और काटने वाला कोई और नहीं, महकमा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुख्तियार गबोल नामी शख्स ने जो है ये दरख्त काटे हैं। आज यहाँ के जो मकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। तकरीबन इन दरख्तों की जो तादाद है जो खान नाला नहर के किनारों पर लगाए गए थे, 80 से 85 दरख्त जो हैं वो काट कर जो है एक तरफ गिरा दिए गए हैं। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की जो धज्जियां जो है वो सरेआम जो सरकारी मुलाजिम है उनकी तरफ से उड़ाई जा रही हैं। ये जो मकीन है वो आज एहतजाज कर रहे हैं, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इनसे जानते हैं, आप महकमा पुलिस जो तैनात ट्रैफिक मुलाजिम है मुख्तियार अहमद, उस पर ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? सर, हमने उसको देखा है रात को, ये काट रहा था दरख्त, हमने शोर शराबा किया, अल्लाह गुल्ला किया, वो भाग गया है, रुका नहीं है, कहता है मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। हम पुलिस स्टेशन में गए हैं, कोई 7 मरतबा हमने FIR कटाई है, 15 पे हमने रिकॉर्ड दर्ज कराया है, लेकिन कोई किस्म का ना SHO ना DSP कोई भी किसी किस्म का इसको एक्शन नहीं ले रहा। इसको फ़ोन करते हैं, ये कहता है कि मैं बासर अफराद हूँ, मैं महकमे का बंदा हूँ, आप मुझे तो नहीं बुला सकते। तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं, ये बताए मुझे, ये दरख्त दूसरे काटने उसको क्या काट दिए गए हैं, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। कैरोड़ पक्का के नवाही इलाके मोजा कादरपुर ढक्कों के कब्रिस्तान रोशन पीर की जानिब जाने वाली सरकारी रास्ता इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर 40 साल बाद ट्रैक्टर के जरिए हल चलाकर वागुजार करवा लिया है। मजीद बात कर लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक बताएगा इस हवाले से। मैं इस वक्त नवाई इलाका कादरपुर ढक्कू में मौजूद हूँ, जहाँ पर कब्रिस्तान दादा पीर रोशन शाह का कब्रिस्तान है, जिसका जो रास्ता है वो कब्रिस्तान का अरसा 40-50 साल से जो है वो यहाँ के मकामी जो जिम्मेदार हैं उनके कब्जे में था, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे उनको यहाँ से मैयत लेके आने के लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो पेश आती थी। आज जो है वो 40-50 साल के बाद वो जो रास्ता था वो वागुजार हो चुका है। इंतजामिया और पुलिस ने यहाँ कर तमाम अहले इलाका के सामने जो है वो रास्ता वागुजार कराया। इस वक्त अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी दसा तुसा कितने अरसे जो है रास्ता बंद है? 40 साल थी, 40 साल तो मतलब सड़क मंजूर है सरकारी है, 40 साल तो इन्हें सड़क बंद की हुई है, मुलू सड़क देंदे ना। आज सड़क इन्हें पुलिस महकमा पटवारी कानगो उन्हें आते थे ऐसा को सड़क कढ़ा देती है। जी मेरे साथ और लोग अहले इलाके में मौजूद हैं, उनसे बात करा लिया गया है। आशिक हुसैन कुरैशी आप तफसीलात बता रहे थे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली के बायस मोहल्ला आगापुर में कूड़े के ढेर लग गए। गंदगी के बायस इलाके में ताफुन फैलने से इलाका मकीन परेशान है। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मोहल्ला आगापुर में MC बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के सामने जो है यहाँ पर जो सफाई का निजाम में इंतहाई नाकस है। कूड़े ने जो है आधी सड़क को जी घेर लिया। इस वाले से यहाँ से हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं क्या वजह है कि क्यों इधर कूड़ा जो है इतनी ज्यादा मिकदार में पड़ा हुआ है। अच्छा आप बताइएगा, क्या इधर सफाई का निजाम नहीं होता? भाईजान इधर सफाई का निजाम इस तरह ही है, ये रोडों के ऊपर आ जाता है। हमारे घर पास है, खिड़कियों में से खाना मरर हो जाए, हमारे लिए बड़ी वो है बदबू। गली के अंदर सफाई करो, मिट्टी कूड़ा फिर हो जाता है। हम तो पहले भी बड़े तंग हैं जी, इतवार पीर को तो इस तरह होता है पूरा आधे रोड के ऊपर आ जाते हैं, हम बड़े तंग होते हैं। ये हमारे सामने घर है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सामने ही घर है और कूड़े की वजह से जो है ताफुन फैला हुआ है। हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आप बताइएगा शिकायत वगैरह नहीं की कभी कोई आपने? पहले हमने शिकायत भी की और इसका उठाने का भी जो है बंदोबस्त किया गया है, फिर पता नहीं किसने जो है बीच में लात लड़ाई वो ये के भी फिर रुक गया। यहाँ गुजरते हैं तब भी बदबू और घर में बैठते हैं तो तब भी बदबू। आखिरी दफा सफाई कब हुई थी?
आखिरी दफा ये जब कोई मेरे ख्याल कोई फंक्शन होता है तो जब करते हैं ये। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि यहाँ पर सफाई जो है उसका कूड़े के ढेर लग गए हैं। इब्राहिम खान आप तफसीलात बता रहे थे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर का तमाम कूड़ा उठाने से कासिर, जितना कूड़ा उठाया जाता है उतना ही बाकी पीछे सड़कों पर पड़ा रह जाता है। बात करेंगे इस हवाले से बिलाल न्याजी से। बिलाल बताएगा। जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा था, हमने तफसीली बताया कि शहर में सफाई के हवाले से कैसा सिस्टम है। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी सफाई के नाकिस इंतजाम हैं। उसके साथ साथ अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक्चुअल कैपेसिटी की बात कर लें तो वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास वसाइल ही मौजूद नहीं है जिनके बायस शहर का जो कचरा है वो इकट्ठा किया जा सके। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें और शहर में मौजूद कचरे की बात करें तो शहर में रोजाना के हिसाब से 1150 टन जो कचरा है वो जनरेट होता है, पैदा होता है, लेकिन इसको ठिकाने लगाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास जो वसाइल हैं वो सिर्फ 600 टन के हैं। मतलब 600 टन शहर से कचरा इकट्ठा किया जाता है और जो 650 टन होता है हम आपको दिखा भी देते हैं कि इस तरह कचरा शहर के गली मोहल्लों, कूचों, बाजारों में जमा रहता है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हम वर्कर्स की बात कर लें तो तकरीबन जो 1800 के करीब अमला है और वर्किंग अमले की बात करें तो 1400 के करीब जो वर्किंग अमला है जो कि शहर के गली मोहल्लों से ये कचरा उठाता है, उसके बाद उसको लिफ्ट करने की कोशिश करता है। शहर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मशीनरी की बात करें 34 से करीब सिर्फ ट्रैक्टर ट्रालियां जो कि 1984 मॉडल की हैं और उसकी बुनियाद पर शहर का जो कचरा है वो उठाया जाता है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर का तमाम कूड़ा उठाने से कासिर है। बिलाल न्याजी आप तफसीलात बता रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है मलिक जफर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, सड़कों पर कूड़ा पड़ा रह जाता है। शहर औलिया में रोजाना 1150 टन पैदा होने वाले कचरे में से सिर्फ 600 टन ही कूड़ा उठाया जाता है। ऐसे है कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है ना अपने रिसोर्सेज के मुताबिक तो काम कर रही है और शहर में सफाई का होना तो जरूरी है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो डेली उठाते हैं और फिर नेक्स्ट डे वो दूसरा उठाते हैं, तो इस तरह इनका इंतजाम तो है लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, तो उस हवाले से अपनी बेहतरी की तरफ तो कोशिश कर रहे हैं। बेहतरी की तरफ कोशिश की जा रही है। सर ये भी बताएगा कि कूड़ा सड़कों पर मौजूद है, उठाया नहीं जा रहा, फिर आपने कहा रिसोर्सेज की भी कमी है, तो ये कहेगा कि माहौलियात को, माहौल पे इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों ने वहां से गुजरना होता है, उनको वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं इस वजह से। नहीं, ऐसी सूरत हाल तो नहीं देखी गई कि सड़कों के ऊपर तो नहीं इनका अमला सुबह से सफाई में मसरूफ ही नजर आता है, सड़कों के ऊपर तो नहीं देखा गया। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सड़कों पर ना देखा गया? हम फुटेज में दिखा रहे हैं कि आप खुद भी देख सकते हैं कूड़ा सड़कों पर मौजूद है। हो सकता है जो नेक्स्ट डे ये लिफ्ट करते हैं तो उस हवाले से फिर वो रोजाना की बुनियाद पर लिफ्ट नहीं होता, जो 50% ये रोजाना लिफ्ट करते हैं और 50% नेक्स्ट डे लिफ्ट करते हैं, तो उस हवाले से सर यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि रोजाना की बुनियाद पर क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है कि रोजाना की बुनियाद पर क्यों नहीं कूड़े उठाया जा रहा? क्योंकि माहौल तो फिजाई, आपको पता है कि स्मोक का भी खतरा है, स्मोक भी इस वजह से पैदा हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। इस हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बेहतर बता सकती है क्योंकि रिसोर्सेज तो उन्हीं ने इस्तेमाल करने हैं। 12 शहर में सफाई का होना तो जरूरी है क्योंकि सफाई होगी तो हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन होते हैं और ऐसे माहौल पे बेहतर असरात मुरतब होते हैं। जफर इकबाल साहब ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों की जानिब से क्राइसिस मैनेजमेंट इस हवाले से क्या की जा रही है, कूड़े को किस तरह से फौरी तौर पर कम किया जाएगा और माहौल दोस्त बनाया जाएगा? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस सिलसिले में उनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और इनका पूरा ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है और वो डेली बेसिस पे काम भी करते हैं, तो क्राइसिस को निपटने के लिए भी काम करते हैं। बहरहाल इसमें सफाई का होना जरूरी है शहर में ताकि रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं इनके, तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक जफर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात। आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आपने ये बताया कि रिसोर्सेज की कमी है जबकि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी सरतोड़ कोशिश कर रही है कूड़ा उठाने की। कि मुल्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रीजनल टैक्स ऑफिस ब्रांच में मुख्तलिफ शोबाजात को खत्म कर दिया गया है जिसके बायस रेवेन्यू को इकट्ठा करने समेत दीगर काम सुस्त रवि का शिकार है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अमजद मलिक। अमजद बताएगा।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जैसे ही मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस को लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस का दर्जा दिया गया है तो मुख्तलिफ ब्रांचेस को ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन यूनिट को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा IANN को जो जहाँ पे ऑफिस है ANP जो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस के। हम इनसे जानते हैं कि ये ब्रांचेस ख़त्म होने से अब जो रेवेन्यू है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। सर बताइएगा रेवेन्यू में कितना फ़र्क पड़ेगा और जो वर्क लोड है उसमें कितना फर्क आएगा। जो स्टाफ हमारा ज़्यादातर चला गया है तो उस तबादला जात की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अदरवाइज रेवेन्यू पे मेरे ख्याल को खास फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि रेवेन्यू तो LTU बनने के बाद वो जनूबी पंजाब में ही रहेगा। ताहम ये जो स्टाफ सारा RTO में चला गया और यहाँ की जो काफ़ी ब्रांचें जैसे क्रेस्ट है I&P है I&I है ये काफ़ी ब्रांचें ख़त्म कर दी गई हैं तो इन पे बोझ पड़ेगा और स्टाफ की शार्टेज की वजह से कारकर्दगी पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो कारकर्दगी को फिर किस तरह बेहतर बनाया जाएगा। जिस तरह ब्रांचेस ख़त्म की गई हैं एक बंदे के पास ज़्यादा ओहदे भी दिए गए हैं तो कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी। ज़ाहिर है इस चीज़ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हायर अथॉरिटीज़ को इदराक है कि स्टाफ की शार्टेज की वजह से अब हमें क्या करना है। तो आई थिंक कि कमिंग डेज में आने वाले चंद दिनों में मेरा ख्याल है काफ़ी मजीद तबादला जात मुतवक्के हैं। मजीद तबादला जात होते हैं क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आपने अपडेट किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के 45 स्कूलों के लिए 8 लाख की मंजूरी। हर स्कूल को 8 लाख रुपए कमरों की मुरम्मत वॉशरूम्स की मुरम्मत के लिए दिए जाएंगे। मजीद बात कर लेते हैं लिशबा आसिफ से। लिशबा बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के 45 स्कूलों को 8 लाख का फंड जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में जिन भी कामों की ज़रूरत थी, कमरों का मसला था, कमरों की मरम्मत का मसला था या फिर टॉयलेट का मसला था, वो हल करने के लिए एक स्कूल को 8 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से और मुल्तान CEO की जानिब से जो है मंजूरी जो है दे दी गई है। स्कूल्स ने जो है अपना एक्शन प्लान लिख के दिया है कि उनको किस चीज के लिए किस फंड की जरूरत है और कितने पैसे दरकार है। दे दी गई है। लिशबा आसिफ आप तफसीलात बता रही थी। मियांवाली में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए वेल विमेन क्लिनिक का आगाज होने जा रहा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में खवातीन में बढ़ते हुए कैंसर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब का एक बड़ा इकदाम सामने आया है। मियांवाली स्कीना हॉस्पिटल में जो है वेल वुमेन सेंटर कायम किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं MSDHQ डॉक्टर रफीक खान नियाज़ साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा वेल वुमेन क्लिनिक जो है बेसिक क्या काम करेगा। ये वेल वुमेन क्लिनिक पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो 3 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जा रहा है, जिसमें खुशकिस्मती से मियांवाली को भी शामिल किया गया है। इसमें हमने करना यह है कि हमारी जो खवातीन हैं उनके जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बाद दवा छुपे रह जाते थे तो इसमें अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी ताकि उसकी ट्रीटमेंट की जा सके। तो इस मकसद के लिए जो तमाम खवातीन गैनी हॉस्पिटल में हमारे सकीना हॉस्पिटल में विजिट करेंगी उनकी पहले स्क्रीनिंग होगी और इस सारी जांच पड़ताल के बाद उसके बाकी ट्रीटमेंट की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।